Do you know the meaning of significant figure? Then probably I might be in a better position to explain you. Infinite, finite. What is the meaning? Sir, ऊपर और ऊपर, हाँ, जा सकता है? नहीं, ठीक है. It's a significant figure here. I have not written incidentally the definition of significant figure. It's all rules, but before coming to the rules, let's have a little debate on what is significant figure. मतलब जबरदस्ती डिक्लेयर करना पड़ता है साइंटिफिकली, क्योंकि अगर उनको हम सिग्निफिकेंट कर दूंगा तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी. फिर it's a burden for ourselves. For example, 3 into 10 power 8 is a number. बट बिफोर वी बिगिन, विजिट कीजिए iitwalebaba.com पे. यहाँ से आप फिजिक्स और मैथ्स के हैंड रिटन नोट परचेज कर सकते हैं अपने बोर्ड, जेई, बिटसेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम प्राइजेस में. डाउनलोड कीजिए IIT वाले बाबा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और व्हाट्सएप ऑन अस 7974122749 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. Let me give you a question, then I explain that again. Okay, अगर ये आ गया समझ में, इसको बताओ कैसे करोगे. सपोज मुझे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एक फॉर्मूला है. वेयर इज द फॉर्मूला अप्लाइड? व्हाट? फाइंड द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. अब R1 है 0.2 ओम, ये है 0.3 ओम. ठीक है. सो आपको R के मेजरमेंट में एरर निकालना, मतलब आपको R निकालना विद एरर. इसमें एरर दिया होगा R1 ऐसे दिया होगा 0.2 प्लस माइनस 0.01 ओम, एंड R2 दिया होगा 0.3 प्लस माइनस 0.02 ओम. दिस इज गिवन. क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज एरर in the measurement of R. इसको दोबारा एक्सप्लेन करने को कह रहे थे ना. You are doing this ना? You all are doing this? You're focusing here because there was a doubt, so I'm just solving it here a little more elaborative way, or maybe the children will note it down.
कहाँ तक पहुंचे? हैव यू डन इट? कितनी बार करवाओगे भाई? वो तो हो गया, वो तो हो गया, कर दिया. I have already done it. Kindly note it down. So, where have you got it stuck? Are you getting some problem? Yeah, you're doing it. कैसे किया? You can take R as R1 R2 upon formula is this. So I said you, if you know the formula, you can apply the propagation of error concept together as a whole, and let us see what you get. So is it a division? As a whole, it's a division. In numerator, multiplication. In denominator, addition. Okay. So first you calculate R. It's very simple to calculate R. Put the values of R1 R2 and R1 plus R2. You can get R. So how much is that? R1 कितना दिया है? 2 ohm. So 2 into 3 upon, अच्छा 0.2 दिया था. Okay, so 0.2, 0.3, 0.2, 0.3. How much? 0.06 upon 0.5. So कितना आ गया ये? 0.012 ohm. R आ गया? Now tell me how to find the error in measurement of R. If I write this as delta R by R, so I need to apply the concept of division. So if it was A by B, so what do you write? Delta A plus delta B by B, ये तो लिखते थे. So इस पूरे को A मान लूं, इस पूरे को B मान लूं, तो क्या लिखूंगा? पहले के लिए डेल्टा ठीक है. इज इट ओके? ये मल्टीप्लाई है, ठीक है. सो आई नीड टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो. So what is the multiplication wala? Delta R1 upon R1 plus delta R2 upon R2 divided by R1 R2 plus delta R1 plus है plus delta R2 upon R1 plus R2. You got delta R upon R. Using this formula you can find delta R. R already you have calculated, so delta R can be calculated. You want to find the percentage error, then delta by R multiplied by 100. ठीक है? Is it okay? I've given one more problem here. Can you do it? जरा ऊपर जाइए सर, थोड़ा सा और ऊपर, नहीं ऊपर, 5 नीचे. हाँ ये तो कर लोगे आप. C की वैल्यू A और B दिख रहा है ना. So A is 5 plus 0.05 and B is 2 plus minus 0.01 and C is 3 plus minus 0.02. Calculate the percentage error in the measurement of Y
A is 5 plus minus 0.05, B is 2 plus minus 0.01, and C is 3 plus minus 0.02. 0.02. Calculate it. फॉर्मूला निकालो पहले. फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा वाई बाई वाई 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 5 डेल्टा सी बाई सी. ओके, अभी मत करो 100 से मल्टीप्लाई, पहले आप वैल्यूज डालो. डेल्टा ए क्या है? दिया हुआ ये, ठीक है. डेल्टा बी क्या है? एग्जैक्टली जो प्लस माइनस करके दिया होता है वही डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी. मल्टीप्लाई बाय 100, 6.8%. 83 या 8? 6.88 833. 833. हाँ जी. प्लस करेंगे चाहे एडिशन में या डिवीजन में, हाँ. प्लस करते रहेंगे. हाँ. फिर उसके अंदर का देखेंगे कि पहले पावर लगानी है. एग्जैक्टली. इसमें भी ऐसे करेंगे. हाँ, उसमें भी करेंगे, उसमें भी कर देंगे. अगर हम R1 को A मान रहे हैं, R2 तो एक बात तो लेकिन वही रहेगी सब. R1 को A मान रहे हैं, R2 को A मान रहे हैं. हाँ, तो वो डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 हो जाएगा, प्लस एक टर्म हो जाएगा वो. आप ये कह रहे हो ना कि अगर मैं इसको ऐसे करूं, बच्चों एक चीज देख लो, एक छोटी सी चीज है बट जस्ट सी इट. अगर हम इसे ऐसे कर ले, इसको न्यूमरेटर को अगर मैं पहले कर लूं डेल्टा R1 R2, ये तब होता अगर मैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये है, ठीक है. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2, तो ये इसका हो गया, न्यूमरेटर का हो गया,
ठीक है, फिर मैं लिखूंगा प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इसमें और इसमें एक फर्क है। फर्क यह है कि आपने इसमें न्यूमरेटर को अलग से करके, डिनोमिनेटर R1 प्लस R2 था, इसको अलग से कर लिया आपने। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया कि न्यूमरेटर को डेल्टा R1 R2 लेकर R1 R2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा A अपॉन A का इसमें डाला। जब कभी एग्जाम में आता है इस तरह से, तो यू विल फाइंड दैट कि जब कभी किसी एरर को तुम किसी चीज से डिवाइड करोगे तो वो और एरर कम हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एरर 0.01, उसको आपने 5 से डिवाइड कर दिया, इट विल बी 0.005। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस। मेजरमेंट करते समय जितना कम से कम एरर आप निकालो उतना अच्छा है। हाउएवर, मैं इसे गलत नहीं कर रहा हूं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपने न्यूमरेटर का पहले कर लिया, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। हमने क्या किया अभी, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c क्यूब था। ठीक है, तो हमने a स्क्वायर का अलग से कर लिया, b क्यूब का अलग से कर लिया, c5 का अलग से करके सारा ऐड कर दिया। ठीक है, कितना आया बताओ जरा, जल्दी बताओ। We can write 6.833 or 6.8 or 6.83. What is the least, what is the maximum value of significant figure in the given data? इसमें कितना significant figure है? इसमें ठीक है, we have got actually, but if I add it, अलग अलग तो देख लिया आपने, इसको जरा ऐड करके देखो। या तो 5.02 होगा, 05 होगा, या तो 5 माइनस 0.05 होगा। तो आपको अब बताना है कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। तो इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अलाउड है आपके लिए। ठीक है, इसी समय वी विल बी वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू सी द सिग्निफिकेंट फिगर एज वेल। पेज निकालना है। हाँ जी बेटा, कुछ रूल्स ऐसे हैं इसके जो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा अपनी समझाने की, लेकिन उसके बाद भी आपके सवाल कुछ इस तरह से हो सकते हैं, अच्छा सर ऐसे कैसे हो सकता है, बट आई एम सॉरी, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स ऐसे होते हैं जिसका जवाब देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए या आपके टीचर्स के लिए। सॉरी, do you know the meaning of significant figure first? Do you know the meaning of significant figure? Then probably I might be in a better position to explain you कि infinite, finite. What is the meaning? Sir, ऊपर और ऊपर, हाँ, जा सकता है? नहीं, ठीक है. It's a significant figure here. I have not written incidentally the definition of significant figure. It's all rules, but before coming to the rules, let's have a little debate on what is significant figure. Certain or uncertain digits, दोनों को मिलाकर So if I believe what you said, then when I write 5.00, when I write 5.00 and I write 5, are they different or the same? 5.00 is same as the 5 or the different as compared to 5? 5.00 is more precise? यही तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि 5.00 मोर प्रिसाइज कैसे होगा एज कम्पेयर टू 5। अभी क्या दिया, अभी की बात बताओ, 5.00 ही दिया ना, तो अभी तो आपको जो 5.00 दिया वो 5 एज गुड एज 5 है। हाँ, अगर ये बात आपकी तब सही होती है, अगर 5.01 होता या 5.02 होता तो मैं बात मान लेता,
एक तो आपने 5.00 लिखा है जो कि एज गुड एज, अब तक तो आप 11th के पहले तो ऑनेस्टली आप यही सीखते थे कि 5.00 को 5 ही लेना है। अचानक से इतना बदलाव आ गया कि 5.00 में आप ये लॉजिक लगाते हो 5.00 इज मोर एक्यूरेट देन 5। वेयर इज दैट एक्यूरेसी? बोले सर इंस्ट्रूमेंट यूज तो किया था, लेकिन सॉरी सर इंस्ट्रूमेंट ने बताया नहीं डेसिमल की बात, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है नहीं आज नहीं बताया कल बताएगा, 0.00 लिख दिया। एक्चुअली देयर कुड बी, आई एम टेलिंग यू देयर शुड बी डिबेट। तो आप 00 लिख किस ले रहे हो? एक रीजन तो ये हुआ, नहीं इस रीजन को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं मैं। एक रीजन तो ये हो गया कि इस बच्ची को पता है, स्मार्ट है ये, कि हमें इस एपरेटस से आज तो मिल गया 5.00, हो सकता है कल हमें 5.01 मिले। तो ये फ्यूचर की सोच के चल रही है एकदम IIT-JEE की तरफ, ठीक है। चलो ये तो हो गया एक चीज, और एक हो सकता है इस लॉजिक पे भी हो। अच्छा तो इतना फालतू में सोच सोच के लिखे, अच्छा परसों जो मिलेगा वो, अगर परसों मान लो 5.012 मिल गया तो क्या करोगे? तो आज क्या लिखना चाहिए तुम्हें? 5.000 लिखना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक कुछ और लॉजिक ले आते हैं, कुछ और सपोर्टिंग लॉजिक ले आते हैं। 5.00 में कम एरर होगा, ये बात कैसे समझूंगा मैं? तो एरर कैसे कम ज्यादा हुआ? 5 तो एज आई सेड न्यूमेरिकली 5 इज एज गुड एज 5.00। अच्छा आप लोग सब लोग एक काम करो, सब लोग कॉपी पे अपने 5.18 को 5 में ऐड करके दिखाओ। 18 को 5 से ऐड करो। 10.1 तो जल्दी इससे आ गया। 5.18 को आपने 5 से ऐड किया, 10.1 तो ये जो 5 था आपने वो 5 में क्यों ऐड किया? 5.00 ओके तो आपको लगता नहीं कि आपने इसलिए ऐड किया कि आप इसको 5.00 लेके ज्यादा प्रेस। अच्छा मान लो 5 में मैं 5.18 में 5.02 ऐड करने को बोलता, लिखो कैसे ऐड करोगे? ठीक है 5.18 में आप 0.006 ऐड करो, करो करो लिख के करो। 5.186. So you know how to actually respect the decimal values, decimal numbers when you are adding and subtracting. So see how you are able to do it. So जब हम ऐड करते हैं किसी भी चीज को, सपोज करो हमने ऐड करना है, तो हमने 5 को ऐड किया और 5.18 में ऐड किया, तो 18 को ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है, क्योंकि 18 ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐड मैंने ऐड करने को कहा आपसे, तो आप 18 को कॉपी क्यों कर रहे हो? ऐड करो ना, तो लगाओ ना, किसने मना किया है? बोले सर ठीक है, जब आप इतना जोर दे रहे हो तो आज मैं लगा ही देती हूं, कई हफ्ते का इकट्ठे लगा देती हूं, और बताओ सर इसके आगे क्या ऐड करना है। हो सकता है मैं ये लॉजिक भी ले लूं, लेकिन I think it's a very significant logic. Don't you feel it's a highly significant logic that why do you put 2 zeros only? There is not, it's not a useless process. I'm not having all fun here. There is a logic. And therefore, please, my dear friends, call these digits also significant. एक logic ये भी हो सकता है, ठीक है, कि why do you call some figures in spite of they having almost no role play, but just as if it's a burden, we still call them significant. High respect. Okay, maybe they have got some significance in calculations. तो ये दो लॉजिक तो हो गया, एक इनकी तरफ से आया, एक मेरी तरफ से आया। हो सकता है कभी कभी साइंटिफिकली कुछ चीजें इनसिग्निफिकेंट हमें मतलब जबरदस्ती डिक्लेयर करना पड़ता है साइंटिफिकली, क्योंकि अगर उनको हम सिग्निफिकेंट कर दूंगा तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी, फिर इट्स अ बर्डन फॉर आवरसेल्फ। फॉर एग्जांपल 3 × 10⁸ is a number, and we all know that number represents the speed of light. अब I ask you how many significant figures are there? अब बोले सर एक मिनट रुक जाओ, सर रुको तो सही। नहीं आपने क्या किया, 3 के आगे 8 जीरो लगाया, फिर काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो मे बी ये भी एक लॉजिक हो सकता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड देयर इज अ रूल दैट कि कोई भी चीज जो आउट ऑफ मेजरमेंट आती है उसमें सारे फिगर सिग्निफिकेंट होते हैं, but there are 9 significant figure here,
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 9 डिजिट तक मेजर करना किसी डिवाइस से इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. 9 डिजिट तक एब्सोल्यूट मेजरमेंट and still then claiming to be always errorless or something, it's not going to be physically possible. Then आप कहोगे सर ये फिगर आया कहाँ से 3 मिनट 8 मिनट किसी ने तो निकाला होगा. तो फोकॉल्ट ने जब निकाला था तो हो सकता है ये जो वैल्यू निकाली थी ये एक्चुअली इस तरह से नहीं आई थी. हो सकता है 2.98 कुछ डिजिट आया था, फिर उसको उन्होंने कन्वर्ट किया होगा. तो फिर इस डिस्प्यूट को कैसे खत्म किया? एक रूल बना के कि 10 टू द पावर जितने भी होंगे उसको इनसिग्निफिकेंट मान लेते हैं. फिर तो एक प्रॉब्लम और हो सकती है. 2.98 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3. ठीक है. 298 में 298 3. ठीक है. 200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अब एक और रूल आ गया. हाँ, तो अगर 200 में 3 है तो 2 इंटू 10 पावर 2 में 1 है. ये क्या हो रहा है? पक्का 1 होगा. तो मैं आपको सलाह देता हूं कि 200 को एक्चुअली 2 इंटू पावर 2 किसने कहा लिखने को? मैंने तो कहा नहीं, तो आप पता नहीं कितने सिखा रखा. 200 को 2 इंटू 10 पावर 2 मैंने तो कभी बोला नहीं. अच्छा, 200 को ऐसे क्यों नहीं लिखते 2.00 इंटू 10 पावर 2? अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? तो दैट मीन्स ये जो दिमाग में चल रहा है आपके खुराफात कि किसी नंबर को हम 10 टू द पावर में कन्वर्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाएगा, ये एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं. वो बदलने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा. बस किसी को एक्सप्रेस करना है, आपकी मर्जी है, करो 10 टू द पावर में, जैसे मर्जी वैसे करो. किसी 10 टू द पावर वाले नंबर को एक्सप्रेस करना चाहो तो आप इसमें कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो नंबर इतना बड़ा ना हो एवोगैड्रो नंबर जैसा या फिर स्पीड ऑफ लाइट जैसा. ठीक है. तो लेट्स सी 1 बाय 1. इसमें से कुछ रूल ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है मैं भी आपको ना बता पाऊं, बट जस्ट लेट्स सी ऑल द रूल्स. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. बता तो रहा हूं 2 इंटू 10 पावर. इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 है. एक्चुअली एक रूल है, अभी इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं. जस्ट सी, अभी कुछ रूल्स बता रहा हूं आपको. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स irrespective whether they are expressed in decimal or non decimal. ठीक है. All zero appearing between two non-zero digits are significant. All zeros appearing to non-zero digits are significant. समझ आ रहा है? ये दोनों significant हो गए. इसमें कितना significant figure है? Okay. All zeros appearing to the right of non-zero digits in a decimal number are significant. ठीक है. Decimal के right जितने भी zeros appear होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे. उसके पीछे एक लॉजिक मैंने दे ही दिया. एक लॉजिक इन्होंने दिया था कि वी माइट सीक मोर एक्यूरेसी एंड सेकंड थिंग वी माइट रिक्वायर एक्चुअली टू कंप्लीट सर्टेन मैथमेटिकल प्रोसेस. जैसे कि लाइट की स्पीड 3 टू 10 वाली उसमें सिग्निफिकेंट ये है, हम उसे लिख सकते हैं 3.00. 3 हो जाएंगे, लेकिन आप 3.00 क्यों लिख रही हो आपको बताना होगा मुझे. सिग्निफिकेंस किसी के द्वारा दिया हुआ एक यूनिवर्सल गिफ्ट नहीं है. किसी बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड, क्योंकि सिग्निफिकेंस का मतलब ही होता है रिलेवेंस. तो तुमने सिग्निफिकेंस बताना है कि तुमने अचानक क्या ऐसी आफत आ गई तुम्हें कि तुमने वो 3 को बजाय 3 लिखने के 3.0 लिखा. अगर तुम बता सकते हो तो मैं उसको मान लूंगा. मैं क्या, सारे मान लेंगे, आईटी वाले मान लेंगे, बट रिलेवेंस बताओ. ठीक है.